Good morning, students. Let us continue our chapter 1, that is knowing our numbers. Today we will do our exercise 1.4. But before starting it, let us know about the Roman numerals. Roman numerals. Do you know? The number 0 does not have its own Roman numeral. Yes, we cannot represent 0 in Roman numerals. We know that. The numerals formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called Hindu-Arabic numerals or international numerals. The symbols used by the Romans are called Roman numerals. These symbols are I, V, X, C, D and M respectively. The value of each of these symbols is as follows. The value of I is 1, the value of V is 5, the value of X is 10, the value of L is 50, the value of C is 100, the value of D is 500. The value of M is 1000. Rules to write Roman numerals. Addition rule. When a smaller number is written on the right of a larger number, the smaller number is added to the larger number. For example, xi is equal to 10 plus 1 is equal to 11. xv is equal to 10 plus 5 is equal to 15. cvii is equal to 100 plus 5 plus 1 plus 1 is equal to 107. dcclx is equal to 500 plus 100 plus 100 plus 100 plus 50 plus 10 is equal to 860. Subtraction rule. When a smaller number is written on the left of a larger number, the smaller number is subtracted from the larger number. For example, v is equal to 5 minus 1 is equal to 4. xl is equal to 50 minus 10 is equal to 40. xc is equal to 100 minus 10 is equal to 90. cm is equal to 1000 minus 100 is equal to 900. Remember, the symbol I can be subtracted from V and X once only. The symbol X can be subtracted from L and C once only. The symbol C can be subtracted from D and M once only. Multiplication rule. If a symbol is repeated in succession, the value of the numeral is obtained by multiplying the value of the symbol by the number of times it is repeated. For example, x is equal to 10 into 2 is equal to 20. C is equal to 100 into 3 is equal to 300. X is equal to 10 into 3 is equal to 30. M is equal to 1000 into 3 is equal to 3000. Remember, a Roman numeral can be repeated maximum 3 times only. The symbol V, L and D are never repeated. Today we will do our very important topic, that is Roman numerals. आपने Roman numerals previous classes में भी हमेशा किया है एंड आपको पता है कि रोमन न्यूमरल्स के सिंबल किस टाइप के होते हैं, लाइक दीज ऑल आर रोमन न्यूमरल्स. एंड जो ऊपर लिखा है 1, 5, 10, 50, ये क्या है? दीज आर आवर सिस्टम, दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम. ओके, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम हम ये यूज करते हैं. ये आपने कहाँ देखा है? आपने कई बार क्लॉक्स में भी देखा है, ये लिखा हुआ है ऐसे 1, 2, 3, इस टाइप से आपने रोमन न्यूमरल सिस्टम को अपनी क्लॉक्स में भी देखा है. ओके, नाउ रोमन न्यूमरल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट रोम. ठीक है, रोम कंट्री से यूरोप में भी इसी न्यूमरल सिस्टम को यूज किया जाता है. नाउ रोमन न्यूमरल्स करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम्स की कुछ न्यूमरल सिस्टम को रोमन में कैसे लिखते हैं ये लर्न करना है. देखिए 1 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, लाइक दिस 5 दिस 10 x 50 l 100 c 500 d 1000 m. तो यहां तक ही हम करेंगे. तो these are the Roman numerals. Okay, some important rules are here. First of all, if symbol is
repeated, its value is added as many times as it occurs. देखिए क्या कहता है कि अगर रोमन न्यूमरल का कोई भी सिंबल हम रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उतने ही टाइम ऐड हो जाएगी। देखिए कैसे, ये क्या होता था, किस चीज का सिंबल है ये 1, ये एक और बार आ गया तो ये दोनों 2 टाइम मैंने इसको रिपीट कर दिया तो 1 + 1 क्या बना 2। नाउ सी ये क्या है, किस चीज का सिंबल है ये 10 का। अब इसे मैंने एक और बार रिपीट कर दिया तो 10 + 10 क्या बना 20। तो फर्स्ट रूल है कि अगर आप सिंबल को रिपीट करते हैं तो उतने ही टाइम उसकी वैल्यू, उतने ही टाइम उसको हम ऐड कर देंगे। सेकेंड, if symbol is not repeated, a symbol is not repeated more than 3 times, किसी भी सिंबल को हम, रोमन न्यूमरल्स के किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप 10 10 10 यहां तक ठीक है 30, बट अब इसको आप 3 से ज्यादा 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो आप रोमन न्यूमरल्स के सिंबल को मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, 3 से ज्यादा बार नहीं करना। बट द सिंबल्स 5, 50 एंड 500, ये V, L और D, इन सिंबल्स को हम कभी भी रिपीट नहीं करते। हम नहीं कर, इसको हम 1 ही टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। V को, V मतलब 5 को, L मतलब 50, L को हम 2-3 टाइम्स नहीं लिख सकते, ओनली 1 टाइम। और D को भी हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, इन 3 सिंबल को हम रिपीट नहीं कर सकते। आगे चलिए, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए मैं लिखती हूं यहाँ पे 10, ओके, और यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया 1, ओके। नाउ आपको पता है इनमें से ग्रेटर वैल्यू सिंबल कौन सा है, जिस सिंबल की ज्यादा वैल्यू है। ये कितनी है इसकी वैल्यू 10 और इसकी 1, तो ग्रेटर ये हुई। तो अब इस ग्रेटर के, ये स्मॉलर वाली राइट में है, ये देखिए ग्रेटर के राइट में स्मॉलर वाली है, तो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर वैल्यू इफ ऑन द राइट साइड ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 10 था और ये 1 है, तो 10 + 1 क्या बना 11, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर के राइट साइड पे है। वही देखिए नेक्स्ट रूल, अगर मैं स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर के लेफ्ट साइड में लिख दूं तो बच्चे ये वैल्यू अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 10 में से अब ये 1 माइनस होगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू मैंने स्मॉलर वाली लेफ्ट साइड पे लिख दी, और अगर मैं स्मॉलर को राइट पे लिख दूं तो ऐड हो जाएगी। तो आपका जो है 4th रूल यही है कि इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू, रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के अगर लेफ्ट साइड में है, ग्रेटर वैल्यू के अगर लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, और अगर राइट साइड में है तो ऐड करना है। तो एग्जांपल मैंने आपको दिया है 10 और ये क्या है 1 1 2 हो गया, और राइट पे लिखा है 10 के, 2 छोटा है 10, तो 2 छोटा है और ये राइट पे है, तो 10 + 2 12। यहाँ देखिए ये C है और ये 10 है, C का मतलब 100 और X का मतलब 10। अब 100 बड़ा है 10, तो 100 ग्रेटर है। अब देखिए 10 100 के लेफ्ट साइड पे है, ये 100 है और 100 के लेफ्ट साइड पे 10 है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90। ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट रूल आपका क्या कहता है, द सिंबल्स V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। देखिए यही 3 सिंबल्स रिपीट नहीं हो सकते थे, यही 3 सिंबल्स आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब इन तीनों से बड़े जो ग्रेटर सिंबल हैं उनके लेफ्ट साइड में इनको आप नहीं लिख सकते, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एंड I जो 1 का सिंबल है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 दैट इज V। जो I है वो V में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है एंड X ओनली, तो I को सिर्फ आप V और X
में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 को आप सिर्फ 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। मतलब जो x सिंबल है, 10 का जो सिंबल है, उसको आप सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? L, M एंड C में से सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको ये रूल अपने नोटबुक पे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ लिखने हैं और इन्हें लर्न करना है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग दीज रूल्स, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। सोचिए कि कुछ रोमन न्यूमरल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि बट उनको ऐसा नहीं लिखा जा सकता। These are the Roman numerals which cannot be written. Can you tell the reason why? इन्हीं रूल्स में से इसके रीजन है, देखिए। फर्स्ट, x x x x, क्या रीजन है इसका? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। This is not a proper way to write. वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये तो 40 बन गया क्योंकि 10 plus 10 plus 10 plus 10 40, but no, it cannot be written like this. क्यों? तो आप अपने रूल में देखिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या बोला था मैंने? देखिए यहाँ पे मैंने बोला था अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो क्या रीजन है इसका कि किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते। और यहाँ कितनी बार रिपीट हो गया? 4 बार। तो इसलिए दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, नाउ ये इसमें क्या मिस्टेक है? कौन सा रूल है जो इस पे लग रहा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते? ये देखिए, आप फाइंड आउट करें इसमें क्या रूल लग रहा है। तो आपको देखना है कि इसका मतलब 10 है, x का मतलब ग्रेटर वैल्यू है और इसका मतलब 5 है, v। बट हमने एक बात क्या कही थी, और v 10 के लेफ्ट में लिखा हुआ है, x के लेफ्ट में है v। और हमने क्या बोला था? देखिए यहाँ पे हमने बोला था द सिंबल v, l एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इन लेफ्ट में लिखना मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट इन तीनों सिंबल्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फेल हो गया। दिस इज नॉट द राइट वे। नाउ I C का मतलब 100 और I का मतलब 1, बट ये भी राइट वे नहीं है। क्या गलती है इसमें? तो हमने देखिए रूल में पढ़ा था I कैन बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि C ग्रेटर वैल्यू है और I स्मॉलर, और I लेफ्ट में लिखा हुआ है C के, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट हमने बोला था I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, V एंड X ओनली। ओके, बट ये कहाँ से? ये V और X में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है I को, बट यहाँ किस में से कर दिया? C में से, इसलिए ये रॉन्ग है। आगे चलिए, X V V, क्या मिस्टेक है यहाँ पे? X V V, तो हमने बोला था V, देखिए यहाँ पे हमने बोला था V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V को, L को, D को हम रिपीट ही नहीं कर सकते, और यहाँ पे देखिए V को हमने क्या कर दिया? रिपीट, इसलिए इट इज नॉट राइट। ओके, नाउ कुछ तो हम इनको नहीं लिख सकते। ओके, ये सभी रॉन्ग हैं। नाउ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, यू विल डू योरसेल्फ। देखिए 40 अगर आपको लिखना है तो 40 को आपको अपने ये बेसिक रोमन न्यूमरल्स की हेल्प लेनी है। 40 को इनमें से आप कैसे लिख सकते हैं जिसका सिंबल आपको पता हो? तो क्या मैं 40 को लिख सकती हूँ 50 माइनस 10? क्या लिख सकती हूँ? 50 माइनस 10। इट मीन्स 50 का सिंबल क्या है? L, जिसमें से किसको माइनस करना है? 10 को। 10 का क्या है? X। तो L में से X को माइनस करना है, और मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर वैल्यू को अगर ग्रेटर में से माइनस करना है तो ग्रेटर के लेफ्ट में उसको क्या लिख दीजिए। तो ग्रेटर L था, इसके लेफ्ट में X को लिख दिया, तो ये क्या बन गया? 40। इज इट क्लियर? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। यस, 69। बच्चे 69 देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप 69 को ब्रेक कीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, दैट इज 60 प्लस 9, 60 प्लस 9। अब मुझे बताइए 60 को आप किसकी हेल्प से लिख सकते हैं? वही 50 प्लस 10, 50 प्लस 10।
और प्लस में क्या है 9। अब बताइए 50 का सिंबल L प्लस 10 का X, ओके, L प्लस X, प्लस में 9 को कैसे लिखेंगे, 9 क्या है 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। अब L में X ऐड करना है, 50 में 10 ऐड करना है, तो ग्रेटर के राइट में लिखिए, ग्रेटर के राइट में लिखिए, ऐड करना है तो प्लस में 10 माइनस 1, 10 में से 1 को माइनस करना है, दैट इज 10 में से 1 को 10 ये माइनस करना है छोटी वैल्यू को, तो लेफ्ट में लिखिए 1, ओके। और ये क्या बन गया ऐड होके L X I X, इज इट क्लियर? यस, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को लिखते हैं 100 माइनस 10, 100 का सिंबल क्या है C, क्या है C, माइनस 10 लेस करना है, 10 का क्या है X। अब देखिए ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर को माइनस करना है, तो स्मॉलर वाली लेफ्ट साइड पे आ जाएगी ग्रेटर वैल्यू के, इज इट क्लियर? हो गया 90। टेक वन मोर एग्जांपल, अगर आ जाए 992, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म कीजिए इसकी, 900 प्लस 90 प्लस 2, ओके। अब देखिए 900 को कैसे लिखते हैं, 900 आप 1000 की हेल्प से, ठीक है, 1000 में से कितना लेस करूं 100, तो क्या आ गया 900 प्लस, अब 90 को तोड़िए, 90 को कैसे हो जाएगा 100 में से 10 माइनस, ओके, और प्लस में 2 तो बड़ा सिंपल है, 1 और 1, सॉरी I और I, ओके। अब देखिए 1000 क्या था M, माइनस किसको करना है 100 को C, ओके, प्लस 100 क्या है C, माइनस क्या करना है 10, दैट इज X, प्लस 2। अब बताइए M में से C को माइनस करना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को, तो स्मॉलर कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, प्लस C में से X को माइनस करना है, स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट साइड में XC प्लस 2, ओके। अब ये क्या बन गया, इसको इकट्ठा लिख दीजिए CMXC2, इज इट क्लियर? दैट्स ऑल। Yes, so let us start our exercise 1.4. Student, this exercise you have to do yourself because you know the all rules very well. अच्छे से रूल लर्न कीजिए, ओके। रोमन न्यूमरल्स में क्या रूल्स हैं, कैसे लिखते हैं या क्या नहीं लिख सकते, उनको अच्छे से लर्न करके आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। किसी में कोई डाउट आता है तो यू विल टेक फ्रॉम मी, ओके। फेयर नोटबुक में डू दिस एक्सरसाइज 1.4।